ناظرین آداب، بدلتا منظر کے اس شمارے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ریاست جموں و کشمیر میں عوامی خدمات سے منسلک شعبہ جات کی بدلتی رفتار کا سرسری جائزہ پیش کیا جائے۔ آئیے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں اس شمارے کے اہم موضوعات پر۔ جڑواں بہنوں نے کی انوکھی پہل، گا کر چلا رہی ہے بیداری مہم۔ نجی تشخیصی مراکز نے طبی جانچ کا عمل دوبارہ شروع کر دیا۔ پلوامہ میں پی ایم کسان اسکیم سے کسان اور باغ مالکان مستفید۔ کٹھوعہ میں ضرورت مند لوگوں کے لیے کمیونٹی کچن قائم۔ پنچ میں جنگی بنیادوں پر ماسک تیار کرنے کا منصوبہ۔ جموں و کشمیر سے تعلق رکھنے والی دو جڑواں سگی بہنیں صائبہ اور سائشہ، ان دونوں نے عالمی وبا کووڈ-19 کے حوالے سے بیداری پیدا کرنے کے مقصد کے لیے کئی نغمے گائے اور لوگوں کو اپنے نغموں سے احتیاطی اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ان جڑواں بہنوں کی پہل کو کافی سراہا۔ جس کو بھارت سے کیسے بھگائے، زندگی کو ہم کیسے بچائے۔ رہاری جموں سے تعلق رکھنے والی دو جڑواں سگی بہنوں صائبہ اور سائشہ نے جان لیوا عالمگیر وبا کورونا وائرس سے متعلق عام لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے ایک الگ ہی راستہ منتخب کیا، جس کی تعریف وزیر اعظم نریندر مودی بھی کرنے سے نہ رہ سکے۔ کیسے بچنا ہے مل کر یہ سوچے۔ دونوں بہنوں کا بیداری پیدا کرنے کا مختلف اور منفرد انداز سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوا اور اس کی کافی ستائش بھی کی جا رہی ہے۔ کیا ہے یہ منفرد اور مختلف انداز؟ آپ بھی دیکھیے اور سنیے۔ گلے ملنے سے پرہیز کرنا، ہاتھ جوڑنا مستی ہے کرنا۔ جب ہم لوگ اسکول میں ایگزامز دینے جاتے تھے تو وہاں پر ہمیں انسٹرکشنز ملتی تھی کہ آپ اپنے ساتھ ماسک رکھو، سینیٹائزر سے اپنے سینیٹائز ہاتھ کرو اور پھر بچوں سے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کر کے رکھو۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم لوگ ایک کورونا کا سانگ بنائے، جس میں کہ ہم لوگ ان ساری چیزوں کو مینشن کرے، جتنے بھی میجرز ہیں ان کو مینشن کرے، تاکہ یہ جتنے لوگوں تک ہو سکے پہنچے، اور خاص کر ان الٹریٹ لوگوں تک جن کو ان میجرز کے بارے میں نہیں پتہ، اور تاکہ ہم اس مہاماری میں ہمارے جو پردھان منتری جی ہیں ان کا ساتھ دیں۔ ہاتھ جوڑنا مستی ہے کرنا، ماسک منہ پہ لگا کے ہے رکھنا۔ دونوں جڑواں بہنوں صائبہ اور سائشہ گپتا نے عام لوگوں میں کووڈ-19 کے خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے بیداری مہم چلانے کے لیے خود کو وقف کیا۔ دونوں بہنیں گا کر سماج کو سوشل ڈسٹنس یعنی سماجی دوری، صابن سے بار بار ہاتھ دھونے، سینیٹائزر کا استعمال کرنے اور دیگر احتیاطی اقدامات اپنانے کی مہم چلا رہی ہیں۔ انہوں نے گا کر فرنٹ لائن ہیروز کو بھی خراج پیش کیا۔ جو میں نے گانا گایا ہے اس میں میں نے پریکاشنز کا مینشن کیا ہے، جیسے گلے ملنے سے پرہیز کرنا، ہاتھ جوڑنا مستی ہے کرنا، ماسک منہ پہ لگا کے ہے رکھنا، دوری رکھ کے ہے ہم سب کو بچنا، خود بھی سمجھے اوروں کو سمجھائیں، مل کر چھکے ہم اس کے چھڑائیں۔ تو میں نے اس سانگ میں مینشن کیا ہے کہ ہمیں گلے ملنے سے پرہیز کرنا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرنا ہے، اور جو مودی جی نے ہمیں بولا ہے کرنے کے لیے، ہاتھ جوڑ کے نمستے کرنا ہے، ان سبھی چیزوں کو فالو کرنا ہے، ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا ہے، جس سے ہم کورونا کو پھیلنے سے کورونا کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں۔ دونوں
दोनों बहनों की ये बेदारी मुहिम और पहल वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी काफी पसंद आई। उन्होंने भी इनकी तारीफ करते हुए एक नगमे को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया। इस तरह वजीर आजम ने भी दोनों जुड़वा बहनों की मुनफरिद पहल की हौसला अफजाई की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मोदी जी द्वारा हमारे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ किया गया और उन्होंने हमारे टैलेंट को पहचाना और उन्होंने इसको कई लोगों तक शेयर किया और ख़ासकर उन इलिटरेट पीपल तक शेयर किया जिनको अभी तक मतलब इन मेजर्स के बारे में नहीं पता। और जितना हो सके मैं अभी भी लोगों से कहूँगी इस गाने को शेयर करो, इन मेजर्स को ध्यान में रखो और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करो और जो मोदी जी ने हमें हाथ जोड़ने का ट्रेडिशनल वे सिखाया है उसको फॉलो करो ताकि हम इस महामारी में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका साथ दें। साइबा और साइशा गुफ्ता ने हाल ही में मैट्रिक के इम्तहानात दिए और उन्होंने इम्तहानात के बाद छुट्टियां मनाने के लिए कई प्रोग्राम तरतीब दिए थे। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से जहां उन्हें अपना प्रोग्राम मुअख्खर करना पड़ा, वहीं उन्होंने अपने पोशीदा टैलेंट को दुनिया के सामने रखने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। साइबा और साइशा गुफ्ता के वालिदैन पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने कोविड-19 की जंग में हर अव्वल दस्ते यानी फ्रंटलाइन हीरोज को भी अपने एक नगमे में खराज तहसीन पेश किया। जान की बाजी लगा के फर्ज निभाते हैं, होते हैं चंद लोग जो दिल में उतर जाते हैं, इन पे भरोसा हमें ना घबराएंगे, जंग कोरोना की जीत हम जाएंगे, तहे दिल से करे हम इन्हें शुक्रिया शुक्रिया। हुकूमत की जानिब से मंजूरी मिलने के बाद वादी कश्मीर में निजी तशखीसी मराकज़ ने तिबी जांच का अमल दोबारा शुरू कर दिया। कोविड-19 के रहनुमा खतूत के तहत कम स्टाफ के साथ निजी तशखीसी मराकज़ खुलने से मरीजों को राहत हासिल हो रही है। आलमी वबा कोरोना वायरस से पैदा शुदा बहरान से जिंदगी की रफ्तार मुंजमद हुई, जबकि तिब्बी शोबा भी इसकी जद में आया। वादी में कोविड-19 लॉकडाउन के सबब निजी अस्पताल और तशखीसी मराकज़ कई हफ्तों तक बंद रहे। अब नए रंग रूप में कायम किए गए मुल्क की लॉकडाउन के लिए जारी किए गए नए रहनुमा खतूत के तहत वादी कश्मीर में निजी तशखीसी मराकज़ ने अपना कामकाज दोबारा शुरू कर दिया। Private sector has come into being now. We are also helping along with the government, which is already stretched, and the Divisional Commissioner of Kashmir and Director of Health Services, Dr. Mathur, they found that it is very important that private sector should play its role. Of course, with some special operative procedures which are in force, they have to be implemented strictly. निजी तशखीसी मराकज़ मुसलसल बंद रहने से मरीजों को गूनागू मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि बेशतर टेस्ट सरकारी अस्पतालों के बजाय निजी तशखीसी मराकज़ पर ही होते हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों की तज्जिया या तशखीसी मराकज़ पर काफी दबाव रहता है। ऐसे में मरीज निजी तशखीसी मराकज़ का रुख करते हैं। इस पैंडेमिक में ये सबसे बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। बिकॉज अभी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैंडेमिक कितना है, कोविड अलग 19 हॉस्टल बने हैं, तो वहाँ कतराते हैं लोग जाने से, और जितने भी एग्जिस्टिंग हॉस्टल्स हैं वहाँ बहुत रश है। आम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है कि वहाँ जाना ट्रीटमेंट कराने या डायग्नोस्टिक करना। हुकूमत ने निजी तशखीसी मराकज़ को बाज़ पाबंदियों के साथ अपना कामकाज शुरू करने की इजाज़त दी है। हुकूमती हिदायत और लॉकडाउन से मुतालिक जारी किए गए रहनुमा खतूत के तहत कम स्टाफ के साथ निजी तशखीसी मराकज़ को अपना काम करने की इजाज़त दी गई है। इजाज़त मिलने के साथ ही
वादी में निजी तशखीसी मराकिज़ ने तिब्बी जांच का अमल दोबारा शुरू कर दिया। मेरी तरफ से एडवाइस है कि जो उनके अटेंडेंट्स होंगे मेहरबानी करके कम से कम आएँ। अगर बेहतर इसी में है पेशेंट को क्लिनिक पे भेजें, क्योंकि सारे लगभग हमारी जो क्लिनिक्स हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे हैं। जो भी पेशेंट्स आएँ वो गाड़ी में ही बैठें, अपनी जो उनके रिश्तेदार हैं पेशेंट को खाली ऊपर भेजें। पेशेंट के साथ वहाँ पे हमारा फीमेल स्टाफ भी अवेलेबल होता है, मेल स्टाफ भी अवेलेबल होता है, वो उनके साथ टैकल कर सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ऐलान के तहत मुल्क भर में नए रंग रूप में लॉकडाउन का चौथा मरहला शुरू हो चुका है और इसके लिए नए रहनुमा खतूत भी मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से जारी किए गए हैं। जनूबी जिला पुलवामा में पीएम किसान स्कीम से किसान और बाग मालिकान काफ़ी मुस्तफीद हो रहे हैं। इस स्कीम के तहत किसानों और बाग मालिकानों में मुख्तलिफ मुराद फराहम की जा रही हैं और किसानों और बाग मालिकानों का इस हवाले से क्या कहना है, देखें इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत ने किसानों और ग्रोवर्स की फलाह बहबूद और तरक्की और उनकी आमदनी में इजाफा करने के मकसद के तहत एक जामा मंसूबा तरतीब दिया, जबकि इस हवाले से वजीर आजम किसान स्कीम मुल्की सतह पर मुतारिफ कराई गई। मुल्क की तरह जनूबी जिला पुलवामा के किसान और ग्रोवर्स भी इस स्कीम से मुस्तफीद हो रहे हैं। 6,000 रुपये जो सालाना गवर्नमेंट देती है, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है किसानों के लिए। इससे किसानों को वक्तन फ़ौक्तन मदद मिलती है, तो वक्तन फ़ौक्तन वो इसे अपनी बागात के लिए दवाई ला सकते हैं, खाद ला सकते हैं। तो इससे ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे किसानों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। पीएम किसान स्कीम के तहत किसानों और ग्रोवर्स को तरह तरह की मुराद फराहम की जाती हैं। इस सिलसिले में किसानों को बीज, अद्वियात से लेकर जदीद मशीनरी की सहूलत मुख्तलिफ ज़वाबित व क़वाबिद के तहत दी जाती है, ताकि वो अपने आमदनी के ज़राया मजीद बढ़ा सकें। मुझे बीन लगानी थी, जब मुझे बीज का पैसा नहीं था, अब मेरे जेब में पैसा आ गया, मैंने पैसा लाया, मैंने बीज लगा दिया। कल उस बीन से मेरे को फायदा आएगा, उससे पैसा आएगा। या दवाई डालना है उसमें, दवाई कहीं पर बहुत बड़ी अच्छी स्कीम है। हाँ, बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है जो बनाई, बहुत अच्छी स्कीम है ये पीएम किसान। जिला इंतजामिया के आला हुकाम का कहना है कि पीएम किसान स्कीम की अमल आवरी को मुतल्लिका महकमों के जरिए यकीनी बनाया जाता है, ताकि किसान और ग्रोवर्स को बराह रास्त इस स्कीम का फायदा हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों की हमत जहद तरक्की की ख्वाहां है। आज के दिन में हर एक जमींदार जो खेती कमाता हो, जो खेती के साथ वाबस्ता हो और मुलाजिम ना हो, कोई लेजिस्लेटिव पोस्ट उसके पास ना हो, वो इस स्कीम के दायरे में आता है। और आज के दिन तक तकरीबन ये जो कोविड-19 की रेस्ट्रिक्शन शुरू हो गई, इससे पहले के इख्तिताम तक हमने तकरीबन 43,000 जो अपने डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स हैं उनको इस स्कीम पर अपलोड, इस स्कीम के पोर्टल पर अपलोड किया हुआ है। मरकजी हुकूमत ने एक हदफ मुकर्रर किया है, जिसके तहत साल 2022 तक मुल्क के किसानों की आमदनी 2 गुना करना शामिल है। इस हवाले से एक खास मिशन शुरू किया गया है, ताकि मुल्क के इस खास तबके को वो मकाम हासिल हो सके जो उसका हक है। तभी जाकर जय जवान जय किसान का नारा शर्मिंदे ताबीर होगा। आलमी वबा कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को इस वक्त अपनी लपेट में ले रखा है और इंसानी और माशी मसाइल का बहरान पैदा हो चुका है। सुबह जम्मू के ज़िला कठुआ में ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक कम्युनिटी किचन कायम किया गया। आलमी वबा कोरोना वायरस ने जहां दुनिया भर में लाखों जिंदगियों को अपना निवाला बनाया और लाखों इंसानों को मुतासिर करके पूरी दुनिया में तिब्बी और माशी बहरान पैदा कर दिया है, वहीं हजरत इंसान भी इस वबा को शिकस्त से दुचार करने के लिए अपनी बका की जंग लड़ रहा है, जिसमें हमारे डॉक्टर्स, नर्सिस और दीगर नीम तिब्बी अमला फ्रंट लाइन जंगजू की मानिंद अपना रोल अदा कर रहे हैं। वहीं ऐसे रजाकार भी सामने आकर
जरूरत मंदों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, जिसकी एक झलक सूबा जम्मू के जिला कठुआ में नजर आ रही है। यूनाइटेड कठुआ को अब तकरीबन 10-12 दिन हो गए ऑपरेट करते। हमने शुरू किया था 500 लोगों को डोर स्टेप लंगर देने से। अब इसका आंकड़ा तकरीबन 10,500 से 11,000 के आसपास आ गया है, जिनको हम 2 कुक्ड मील्स लंच और डिनर उनके डोर स्टेप पर सर्व करते हैं। और जब हम उनके दरवाज़ों तक जाते हैं तो पता चलता है कि काफ़ी इन्फेंट्स और काफ़ी छोटे बच्चे जिनकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट सॉलिड फूड के साथ साथ दूध भी है, तो ऐसे तकरीबन 400 घरों को अब तक आइडेंटिफाई किया गया है और इन घरों में आज से दूध पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोविड-19 की वबा से पैदा शुदा बहरानी सूरत-ए-हाल से मुतासरीन की राहत रसानी के लिए यहाँ एक कम्युनिटी किचन कायम किया गया है। यहाँ जरूरतमंदों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया जाता है। ये कम्युनिटी किचन मदद फराहम करने वाले हाथों से कायम किया गया है। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं JNK पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने वॉलंटरी के तौर पर हमें मौका दिया सेवा करने का। और लगभग हम कहना चाहता हूँ कि लगभग 10 से 12 हज़ार तक खाना हम डेली सप्लाई करते हैं बाहरों में, मोहल्लों में जाके। और उन लोगों के लिए जो बाहर से आए हुए हैं लेबर मजदूर वगैरह जो भूखे हैं, यहाँ पे लेबर का काम करते हैं, फैक्ट्री बंद हैं। इस कम्युनिटी किचन से जरूरतमंदों के लिए 2 वक्त का खाना बनाया जाता है और बादज़ां इस खाने को जरूरतमंदों में बांटा जाता है। जरूरतमंदों में खत इफलास से नीचे जिंदगी गुजर बसर करने के अलावा मुहाजिर मजदूर भी शामिल हैं। कभी राजमा बन जाते हैं, कभी कड़ी बन जाती है, कभी चने की दाल बन जाती है, कभी माम मूंगी की दाल बन जाती है। अलग अलग टाइप में एक किसी दिन सब्जी भी बन जाती है इधर। और जो भी हमारे को मेनू मिलता है, कुछ समाज सेवी संस्था हमको सेवा करके दे जाती हैं और हम वो ही तैयार करके अच्छे तरीके से तैयार करके लोगों को शुरू से लेके लास्ट तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वजीर आजम ने अपील की थी मुल्क में कोई खाली पेट न सो जाए, इसलिए लोग अपने आस पड़ोस में जरूरतमंदों का ख्याल रखें। कठुआ में कम्युनिटी किचन इसकी एक कड़ी है। वैसे भी इंसान पर यह फर्ज है कि वो मुश्किल हालात में दूसरे इंसान की मदद करे। पुंछ में इंतजामिया की जानिब से सेल्फ हेल्प ग्रुप की मरकजी स्कीम के तहत जंगी बुनियादों पर मास्क तैयार किए जाते हैं, जिन्हें बादज़ां आम लोगों में तकसीम भी किया जाता है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए आम लोगों के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। वजारत दाखिला की जानिब से लॉकडाउन 2 मरहले के लिए जारी किए गए रहनुमा खतूत के तहत फेस मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दिया गया। ताहम वजीर आजम ने बाजारों में फेस मास्क की कमी के पेश नजर होम मेड मास्क इस्तेमाल करने पर जोर दिया। पुंछ में इंतजामिया की जानिब से जंगी बुनियादों पर मास्क तैयार किए जा रहे हैं। मैंने कई दिनों से मास्क बनाना स्टार्ट किए हैं। लगभग मैं 5-6 हज़ार मास्क बना चुकी हूँ। तो मैंने अपनी बेटियां भी साथ रखी हुई हैं, वो भी मदद कर रही हैं। तो मैं मास्क बना के लोगों को फ्री बांट रही हूँ, तो ताकि ये कोरोना वायरस से बच सकें। छोटे छोटे बच्चों को भी, बड़ों को भी, सबको दे रही हूँ। जम्मू कश्मीर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन JKSRLM से वाबिस्ता छोटी सेल्फ हेल्प ग्रुपों में काम करने वाली खवातीन ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपना किरदार अदा करते हुए बड़े पैमाने पर मास्क तैयार करने का काम शुरू किया है। सूबा जम्मू के सरहदी और पहाड़ी जिला पुंछ में मुख्तलिफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने इंतजामिया की तरफ से फेस मास्क तैयार करने का काम जंगी बुनियादों पर शुरू किया। बच्चे ऐसे रोडों में घूमते हैं, तो लेकिन एक मास्क बहुत ज़रूरी था। इन्होंने काफ़ी दिनों से तैयारी की। मास्क जो कपड़ा तैयार किया, खुद ही अपने पास से खर्चा किया करके आज बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं। कि हुकाम ने इन ग्रुपों के बारे में तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि हुकूमत हिंद की जानिब से
खास स्कीम मुतारिफ कराई गई है। उन्होंने कहा कि जिले में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जिनमें दर्जनों खवातीन काम करती हैं, को जिला इंतजामिया की तरफ से फेस मास्क तैयार करने का ऑर्डर मिल गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी इंस्ट्रक्शंस है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनको एनकरेज कर रहा है और हमें भी यह हिदायत है कि इनको मैक्सिमम इनको असिस्टेंस दी जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट कपड़ा दिया जाए, ताकि ये जो आगे आए हैं इनको एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए। ऐसे आगे भी हम देख रहे हैं कि मंडी लोरन में डिपार्टमेंट में वहाँ पे भी काफ़ी वॉलंटियर्स लड़कियाँ आई हैं आगे, तो उनको भी हम एनकरेज कर रहे हैं आने वाले वक्त में। मास्क बनाने के लिए मटेरियल जैसे कपड़ा वगैरह इंतजामिया फराहम कर रही है, जबकि वो सिर्फ उन्हें तैयार कर रही हैं। इन मास्क्स को हुकूमत की तरफ से वज़ा करदा प्रोटोकॉल और जारी करदा रहनुमा खतूत के मुताबिक तैयार किया जाता है। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के शुमारे का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नए शुमारे के साथ। जब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, हमें रखिए अपनी दुआओं में शामिल। अल्लाह हाफिज़।